Hello and welcome to In Pursuit of. Maybe surprised that we are actually online and we are online for a reason. We wanted to include those social entrepreneurs and those stakeholders of the social sector who cannot travel all the way to our studio in Delhi. So today we have with us Ajay Kumar, founder and director of Teach for Green, a social organization which works towards sustainability in the regions of Jharkhand. Ajay is with us today from Daltonganj, Jharkhand. Welcome, Ajay. Thank you, Aparna. Ajay, tell me, what are you in pursuit of? सो आई एम इन परसूट ऑफ कि कैसे जो चिल्ड्रंस हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने लोकल फ्लोरा फ्यूना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को समझ पाए और सस्टेनेबिलिटी और जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं उनको समझते हुए एक साथ रह पाए और उसके ऊपर काम कर पाए. So, Ajay, we'll start with a rapid fire round. Okay. And I'm going to ask you 10 questions. Let's see how you do. Okay. First word that comes to your mind when you hear the word green. Trees. If I describe on the childhood guava tree in my backyard, so I resemble very much with the green word there. Favorite DIY project that kids love the most? Solar lamps or wind turbine? Solar lamps. Because they love with the lights, when they switch on, the lights start glowing. They really love that. How sweet. So sweet. Quite exciting. Suddenly you've created something and then there's light. So nice. So one DIY project that always excites you. When the children walk with the nature gene, they prepare a magazine when they are experiencing with the nature. It's really like they remember their backyard things and they write on that. So it's really nice to when they prepare the nature with the pictures, memories and all, and they share with their groups. Okay. One waste material that you've seen children recycle in the most creative and innovative ways. This is the PET bottles. The PET bottles, when they start doing with the PET bottles, there are different things like they color it, they creative, make different things. So PET bottles. Like a book or thinker who shaped your sustainability journey. For me, a thinker, the person of name, the Ramamurthy, Sridhar sir. So he kind of mentored and helped me to think about the sustainability, the climate changes and all. If recycling were a game, what would it be called? For me, I feel a puzzle. It's maybe a simpler puzzle or a complex puzzle. It depends on that, but you are going to put things and complete the whole thing. So I feel recycling is a kind of puzzle. You have to put the real shapes are there and it's complete and it's workable and something come out of. Very nice, actually. It really is a bit like a puzzle, isn't it? How can we, find solutions in this thing? Very nice. One myth about recycling that you'd like to bust instantly. Generally, what people I heard and think of, it's not workable or long time when you recyclable something come out with the recycle thing, but it's not like that. It can be workable, it can be useful, and people can use it and this thing. So I just wanted to say that recycling or upcycling can be a workable. We can use that product. We can as the other product which is made of. If you could describe experiential learning in a color, what would that color be? मेरे लिए बच्चे जब हाथ से काम करते हैं जो सॉइल का कलर होता है तो working with that, you are doing something, making with the hands. तो वो जो करने में फील होता है और जो सॉइल कलर होता है, I feel that's the experiential learning will be the color. Very nice, actually. I mean, I didn't think of it at all like that, but it's so nice. It's like the color of nature. Yeah. If Teach for Green was a song, what song or genre would it be? We have not created any song, but I just think of one song which can relate our thing. हम होंगे कामयाब एक दिन होगी हरियाली चारों ओर एक दिन. So I can think of this song. How nice. That's such a nice twist to the lyrics. Yeah.
So nice, Ajay. I Yeah. liked it. Done well in the rapid fire round. And now we're going to move to the issue based questions, the longer ones. And I want to know, what is it that inspired you to start Teach for Green? And in what way, the second part to that question is, in what way is it different from traditional models where, that environmental NGOs follow? Yeah, so I come from, as you said, about झारखंड। आई ग्रोन अप बॉट अप देयर। जब बड़ा हो रहा था मैं, तो मैं देखता था कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमारे आसपास में थे और बहुत ज्यादा थे। और उससे जो लोगों में परेशानियां हो रही थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। एक तो चीज था कि हम कोई सॉल्यूशन बना बनाया खरीद लें या देख लें बाहर से, वो एक हो सकता था। लेकिन कैसे वहां के लोग इन्वॉल्व होके वो एक बनाना हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या अपने वॉइस में ग्रुप में काम करना हो सकता है, वो बहुत ज्यादा मिसिंग पार्ट था। वहां के लोकल चीजों के बारे में भी बच्चे, कम्युनिटी नहीं जानते हैं, नहीं समझते थे, तो वो एक बहुत बड़ा वो चीज था। दूसरी चीज थी कि मैंने जैसे बताया कि हमारे बैकयार्ड में काफी पौधे पेड़ थे। मैं अपनी दादी, ग्रैंडमदर के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ये एक चीज समझ आया कि ये जो हम अर्थ को, हम सिर्फ अपने अपने लिए, ह्यूमंस के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग हम शेयर करते हैं सेम अर्थ को। तो वो बाकी चीज, जैसे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके पास वॉइसेस नहीं है, मगर वो भी इस अर्थ के पार्ट हैं। तो कैसे उनके लिए वॉइस बना जाए, उनके प्रति इम्पैथी क्रिएट किया जाए, वो बहुत बड़ा मिसिंग था। मैं देखता था कुछ भी, कभी किसी को कोई रीजन हुआ, उसको काट दिया, या किसी एनिमल के साथ, और वो अपनी वॉइस नहीं कर सकते थे। तो हम ह्यूमन, हम चिल्ड्रन, हम जो यूथ्स हैं, कैसे उस चीजों के बारे में सोच सके और काम कर सके। तो ये दोनों चीजें काफी मेरे लिए चीजें जो मैं बचपन से देखते आया इसको स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी चीज, जो अब बहुत सारे इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया या वर्ल्ड में, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि उसमें भी दो तरीके के जो ऑर्गेनाइज, एक तो हुआ कि जो इवेंट बेस्ड होते हैं, कि जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी डे, वो आया तो हमने कुछ कर लिया, एक वर्कशॉप कर ली, एक कॉन्फ्रेंस कर लिया, वो भी जरूरी है, मैं उसकी बात नहीं करता सब एक साथ। लेकिन ग्रास रूट में एक लॉन्ग चाहिए, उस बच्चे के साथ, उस कम्युनिटी के साथ लॉन्गर टर्म चाहिए। तो वो मुझे मिसिंग लगता था, वो चीजें मुझे नहीं। और एक दूसरा जो है कि लोग कंटेंट के ऊपर या लेटर्स, पेपर्स के ऊपर में लिखते हैं या वो करते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन कैसे वहां के वॉइसेस, कैसे लोकल जो सॉल्यूशन, लोकल प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर बात किया जाए। क्योंकि हर एक जगह का प्रॉब्लम अलग है, कहीं पे वाटर, कहीं पे पानी, और उसके रीजंस भी अलग हैं। तो वहां पे चीजें, तो वो मुझे लगता है कि वो हम टीच फॉर ग्रीन एक हम वहां पे करने की ट्राई कर रहे हैं। उस लोकल एरिया में, उस कम्युनिटी के साथ टुगेदर बैठ के कैसे हम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है, कुछ अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर सके। तो दैट्स वी ट्राइंग वर्क। Very nice, Ajay. And I think you're absolutely right that, local issues, cannot be addressed by just a global view. It's so important to work with people in that locality, in that area, directly with them, and to understand their problems, right? I mean, you can't copy paste things from other places. So very, very, very nice. So Ajay, tell me, how Yes. does experiential learning change the way children understand the concept of sustainability versus classroom theory? Every person, every human beings goes to a school, read through the books and all, and there is some theory and all in the book classrooms, हमने भी वो देखा। लेकिन होता क्या है कि वो चीजें जो उन्होंने पढ़ा, बस पढ़ने के लिए हमने एक पेड़ लगा दिया, खेती कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, सोलर एनर्जी क्या है, तो वो सिर्फ पढ़ने, कि उससे जो थ्योरी की बातें हैं वो उस क्लासरूम या वो एक उस डे के लिए बस बन के रह जाती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने ये देखा है कि जब वो बच्चा वो उसके साथ चीजों को करता है, कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना, उस
सोलर सोलर पैनल को समझना, उससे को कंप्लीट करते हुए, ये बहुत बड़ा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है। और दूसरी चीज, ये वर्क करती है। हम जनरली सुनते तो हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस हम सामने देख रहे हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है खेती करना या एक छोटा सा पौधा लगाना, एक प्लास्टिक का प्लांटर बनाना, लेकिन उस चीज को एक्सपीरियंस करना एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस देता है, सामने चीजों को होते हुए दिखता है। और इससे बच्चे और ज्यादा करने के लिए वो होते हैं। जब अपने ऊपर एक बिलीव हो जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक फैक्ट है कि आप बिलीव कर लेते हो उस थॉट को, सामने होता हुआ देख सकते हो, तो यू कैन से अदर ऑल्सो, मोटिवेट अदर ऑल्सो, और हम साथ में अदर ग्रुप को भी सिखा सकते हैं। तो वो एक चेंज हमने देखा है अपने क्लासरूम में। बच्चे क्लासरूम में भी सीख रहे हैं, फिर अपने गांव में जाके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अपने लोकल लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, और जो चीज वो कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो वो एक चेंजेस मैंने देखा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बच्चों के साथ और कम्युनिटीज में। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और वही सीख घर ले जाना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, आई मीन, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने तो कभी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि एंड आई वांट टू मेंशन दिस अजय, कि आप काम करते हैं एक बहुत रिमोट एरिया में ऑफ झारखंड, डाल्टनगंज, एंड द नेबरिंग जंगल्स व्हिच आर स्कूल के बच्चों के साथ, जहाँ पे यू टीच देम टू रिसाइकल waste, right? And also to do composting, how to plant, how to grow plants, etc. So now I want to understand one thing: the children who are in in the schools, or living in the who are the tribals, right, living in the jungle area, etc., how do they make a connection with sustainability and the need to protect green, because that's all they've seen, right? उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है कि ये सब जा रहा है हमसे, एंड दे डोंट लिव इन अ कंक्रीट जंगल। सो हाउ आर यू एबल टू, उनको समझ में आता है क्या कि ये बहुत जरूरी है? तो इसमें मैं बस हम पिछले 5-6 सालों से उस कम्युनिटी, मैंने तो जैसे बताया कि मैं तो वहीं से हूँ। तो जब हम बात करते हैं इन बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ, कि सिंपल चीजें हैं कि जैसे गर्मी, हमारे यहाँ गर्मी का 2-3 महीने, और हर एक साल देखा गया है कि गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो जब जब वो बच्चे जब अपने मम्मी-पापा से अपनी कम्युनिटी में बात होती है, तो उन्होंने उस डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 20 साल पहले क्या था, कि हमें पंखे की भी जरूरत नहीं होती थी। हम अपने कम्युनिटी में, अपने जंगल में अच्छे से रह लेते थे। लेकिन वो अभी 40 से ऊपर, 45, 2 महीने 40 से ऊपर टेम्परेचर होना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना, बहुत कम होना 2-3 घंटे के लिए, तो ये उन्हें दिख रहा है सामने। पहले वो कहते थे कि वेस्ट मटेरियल बहुत कम होते थे, लोग अपनी घर से चीजों को यूज कर लेना, क्लोथ का बैग का यूज कर लेना, रिसाइकलिंग उनके मन में था। लेकिन जैसे जैसे ये प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें आई, तो उन्हें दिखने लगा कि रोड के किनारे, घर के आसपास बढ़ती जा रही हैं प्लास्टिक्स, और उसका क्या कर सकते हैं। मतलब वो एक आदमी या वो नहीं, पूरे कम्युनिटी की बात हो गई। दूसरी चीज पानी को लेके है कि पानी हमारा यहाँ है मोस्टली रेन पे हम डिपेंडेंट हैं। तो धीरे धीरे जो उपज होती है पौधों की, वो कम होते जा रही है। पहले तो था कि हमने कुछ लगा दिया, वो हो गया, पानी की व्यवस्था थी, लेकिन अब वो कम होते जा रहा है। तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि क्या इसके ऑप्शन है। वो उनकी फैमिली उससे दिक्कत, पहले जो लोग खाना उपजा के खा लेते थे, अब उन्हें एक टाइम के खाने के लिए भी दिक्कत होने लगी है। वो पीडीएस पे डिपेंड, गवर्नमेंट के खाने पे डिपेंड होने लगे हैं। तो ये चीजें जब हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ हम वीडियो वॉचिंग के साथ मूवी देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अगर दिल्ली की अलग अलग जगहों की बात करें, तो वो देखते हैं कि 20 साल 25 साल पहले वहां भी वो स्थिति नहीं थी। लेकिन ये बात है, अगर हम अभी नहीं समझते, कुछ अपने हैबिट्स को, अपनी चीजों को नहीं समझते, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, वेस्ट का हो, या एनर्जी के रिलेटेड हो, उन चीजों में अभी बदलाव नहीं लाते, तो इस तरह से वो वहां रह रहे हैं, लेकिन उन चीजों को समझ पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, और फिर उन चीजों पे ऑप्शंस को देखने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो एक कनेक्शन, यू कैन आई कैन से कि दे आर वर्किंग एंड सीइंग एंड वांटेड टू वर्क ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी। Very nice. Really, really nice, and so important, I mean, और बच्चों को ही सिखाना बेस्ट है. So, keeping that in mind, कि how do you think
recycling education in at the school level will work towards India's climate goals? आई फील कि वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी के रिसेंट के कुछ रिसर्च में है कि अभी हमारे खाने में, पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स आ गए हैं और ये प्लास्टिक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कि अब ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ ये शहरों तक सीमित है, गांव जंगल से या कहीं भी ये पहुंच चुके हैं। और जो ये रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग है वो एक हैबिट पे होना हमारे, मतलब हम अपने बच्चों के साथ जब डिस्कस करते हैं कि कैसे वो पुराने चीजों में था, मतलब पहले से वो इनबिल्ट था, लेकिन बीच में हमने सोचा कि हम यूज कर सकते हैं, हम मटेरियल्स ले सकते हैं, लेकिन अभी जो वेस्ट अराउंड दिखने लगा है, अभी हम वेस्ट के प्रॉब्लम से वो कर रहे हैं। तो कैसे एक कम्युनिटी, अगर हम इंडिविजुअल तौर पे भी हम एक प्लास्टिक्स, मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारे एक स्कूल्स में बच्चे ने सर्वेस किया था, तो उन्होंने देखा कि कितने प्लास्टिक्स यूज हो रहे हैं हाउस होल्ड में, नियर बाई इंडिविजुअल हाउस होल्ड में। और फिर जब हम बच्चों ने पेपर बैग, क्लोथ बैग और इन सब के ऊपर में बात किया, तो कैसे एक छोटे गांव में 50-60 घरों में चीजें चेंज होने से कितना प्लास्टिक रिडक्शन हो गया, अगर उन्होंने हैबिट चेंज की, एक क्लोथ बैग का यूज करने लगे और इन चीजों से। तो जब हम लॉन्गर में, जैसे आपने पूछा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमारे वर्ल्ड के लिए इशू है, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल में, एक फैमिली लेवल में इस चीजों को भी चेंज अपने हैबिट्स में, अपसाइकलिंग या रिसाइकलिंग का हम करने लगते हैं, तो धीरे 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 जो रिडक्शन हम देख रहे हैं, एक स्ट्रॉ का यूज करना, एक पेपर प्लेट का यूज, प्लास्टिक प्लेट का यूज करना या प्लास्टिक ग्लास का, विच इज वेरी कॉमन है अभी के समय में, लेकिन अगर उसी को हम नकारते हैं, कुछ कुछ उसके अल्टरनेटिव में यूज करते हैं जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण या हमारे कम्युनिटी, हमारे आसपास के लिए सस्टेनेबल है, तो ये एक लॉन्ग रन में या एक बड़े उस चीज में हेल्प करेगा उस चीज को रिड्यूस करने में। एब्सोल्युटली, आई थिंक और बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अडल्ट्स तो अब चेंज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दिस इज सो एजुकेशन इन स्कूल इज रियली द वे टू गो, यू नो, एंड चिल्ड्रन फोर्सिंग देयर पेरेंट्स टू मेक दोस चेंजेस, लाइक यू सेड कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं एंड यू नो दे मेक दोस चेंजेस, व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग। But Ajay, I have to say that you're doing such commendable work. I know there are a lot of NGOs working in remote areas. Of course there are. But to actually think that, you know, the local communities need to be, and rural communities or, you know, tribal communities need to be taught sustainability so that they can protect their environment and their land. And also themselves, of course, for the future, is really progressive and far thinking. I really hope that you make great inroads and you get lots of funding. I really, really wish it for you. So, because this is really the need of the hour. So, thank you so much for being on our show. It's been a pleasure. I mean, we've been trying to get you on our show for a long time. And, you know, thank you so much. We're trying our bit, and it's a long journey. We come to this time, and we wanted to work is this thing, and it's a support of different person, and we are looking for support कि हम और भी जो लोग हैं वो साथ आएंगे और ये जर्नी चलता रहेगा, और जिन कम्युनिटी, जिन बच्चों के साथ हम काम करना चाहते हैं वो और ज्यादा चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और हम एक जो ग्रीन और इन्वायरमेंट की बात, ये जो अभी हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं उससे हम उबर पाएंगे। थैंक यू अपर्णा फॉर गिविंग मी टाइम टू शेयर माय जर्नी about Teach for Green. It's really, thank you. Our pleasure. And for everyone watching this show, please do subscribe to In Pursuit Of. We'll be back soon with yet another guest doing some spectacular work.